chapter 1, that is the matter in our surrounding, video part 1. Students, we will study about matter, properties of matter, composition of matter and different states of matter in this lesson. Now we proceed from first topic. What is matter? Something that occupies space and has mass is called matter. In other words, something having both mass and volume is said to be matter. Example given: air, water, table and chair, etc. Matter is made up of very tiny particles. These particles are too small to our imagination. Students, matter, द्रव, something, कोई भी चीज that occupies space, जो स्थान घेरता है, and have mass, और उसमें द्रव्यमान होता है, is called matter, द्रव कहलाता है. In other words, दूसरे शब्दों में, something having both mass and volume, मास और वॉल्यूम दोनों प्रॉपर्टी रखने वाली कोई भी चीज द्रव कहलाती है. उदाहरण के लिए एयर, हवा, वाटर, जल, टेबल, मेज एंड चेयर और कुर्सी इत्यादि द्रव के उदाहरण हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ, द्रव बना हुआ है वेरी टाइनी पार्टिकल्स, अत्यंत सूक्ष्म कणों से. दीज पार्टिकल्स, ये कण, आर टू स्मॉल टू आवर इमेजिनेशन, ये कण इतने छोटे हैं कि हमारी कल्पना से परे हैं. हम इनके कितने छोटे हैं हम अनुमान भी नहीं लगा सकते. हम इनके टाइनी होने का अनुमान आगे कुछ एग्जाम्पल्स में लगाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, द्रव्य के विशिष्ट गुण. नंबर 1, particles of matter have space between them. Students, द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है. नंबर 2, particles of matter are continuously in motion and due to this motion particles possess kinetic energy that is directly proportional to temperature. When temperature is increased, particles move faster and space between them is also increased. Between them is also increased, and due to work of these particles of matter intermix, and due to work of this property the particles of matter intermix with each other on their own, and this property of intermixing of particles of two different types of matter on their own is known as diffusion. Number 3, particles of matter attract each other, and this force of attraction acting between them keeps the particles bind together, and the strength of force of attraction varies from one kind of matter to another. All the properties mentioned above give us the idea for existence of different form of matter. Different form of matter. Due to the variation in the characteristics of the particles of matter, we find that the matter around us
can be seen in 5 different states. Number 1 solid, number 2 liquid, number 3 gas, number 4 plasma, and number 5 Bose-Einstein condensate. Plasma state is easily not found, and fifth state has been discovered in 19th century by S.N. Bose and Albert Einstein. About the fourth and the fifth states of matter, you will be taught in higher classes, and so we will study about 3 states of matter named as solid, liquid and gas in this lesson and also in this class 9. Students, now come on the topic. Students, it is not surprising that scientific names are exactly different from the common names. For example, we are human beings, but science never recognizes us in the form of human being. We are recognized by Homo sapiens sapiens. Same way, Medhak frog is recognized by Rana Tigrina in scientific language. Same way, after making so much observation, scientists declared that all the objects are made up of materials, and the materials are known as matter. तो स्टूडेंट्स, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, जो स्थान घेरे और उसमें मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों हो, उसे द्रव्य कहा जा सकता है। वायु, अब हम देखते हैं वायु स्थान कहाँ घेरता है, वायु में मास कैसे होता है। तो यह एग्जाम्पल हम जान सकते हैं। अगर हम 2 बैलून सेम साइज और सेम मास के लें, दोनों एक में हम एयर फिल कर लें और दूसरे को एम्प्टी रहने दें। अब हम बैलेंस तराजू के 2 पल्लों पर रख के देख लें, तो जिसमें हम हवा भरेंगे वह गुब्बारा भारी हो जाएगा, जो प्रूफ और देखने में जो हवा भरा रहेगा जिस गुब्बारे में, उसका आकार बड़ा हो जाएगा और भारी भी रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एयर स्थान भी घेरता है और उसमें मास भी होता है। इस प्रकार एयर हमारा मैटर है। स्टूडेंट्स, मैटर जो होता है वह बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनके छोटे होने का भी हम अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत छोटे, बहुत छोटे, बहुत छोटे, यानी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन होते हैं। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आप समझ जाएंगे, जो आप बुक में दिया हुआ है 9th NCERT में। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट की एक छोटी सी टेबलेट लीजिए और 1 लीटर पानी भरकर आप 10 जग में रख लीजिए। हाँ, याद रहे, जग आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल का होने चाहिए जिससे आपको बाहर से दिख सकें। तो स्टूडेंट्स, आप पोटेशियम परमैंगनेट की 1 टेबलेट लीजिए, अब पहले जग में डाल दीजिए। आफ्टर सम टाइम आप ये देखेंगे कि पूरा वाटर का कलर चेंज हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि 1 लीटर के, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट का मास 5 मिलीग्राम भी नहीं था, लेकिन उसने पूरे 1 जग पानी को कलर बना दिया। स्टूडेंट्स, दिस मीन्स इतने छोटे टिकिया में इतने पार्टिकल्स निकले कि वे वाटर के 1 लीटर पार्टिकल के साथ कंप्लीटली इंटरमिक्स हो गए। अब हम देखते हैं, आपको लग रहा है कि बहुत इतने छोटे होंगे, नहीं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट जग में से जो कलर जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट घोला है, उसमें से हम 200 ml वाटर, कलर्ड वाटर निकाल के दूसरे जग में डाल देते हैं। हम पाते हैं दूसरे जग का पानी भी पोटेशियम परमैंगनेट के कलर का हो जाता है। अब दूसरे जग में से फिर 200 ml पानी निकाल के आप तीसरे जग में डालिए। इसी प्रकार तीसरे जग में से निकाल के
चौथे जग में डालिए, फिर चौथे जग में से निकालकर पांचवें जग में निकालिए, और इसी प्रकार करते जाइए तो आप पाओगे कि 10वें जग का पानी भी कलर हो जाएगा, लेकिन उसका कलर एज कंपेयर विद फर्स्ट जग बहुत हल्का होगा। स्टूडेंट्स, अब आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट के टेबलेट के पार्टिकल्स 10 लीटर वाटर के पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स हो गए, यानी इनका आकार बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। स्टूडेंट्स, द्रव्य की विशिष्ट गुण या विशेषताएं, तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। इस बात की सबूत के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। स्टूडेंट्स, आप एक जग में, एक बीकर में, एक ट्रांसपेरेंट बीकर में 1 किलोग्राम तौल कर पानी रखिए, वाटर रखिए, प्लेन वाटर, और वाटर लेवल पर मार्क कर दीजिए, इंक लेकर के मार्क कर दीजिए कि कहां तक पानी आया। स्टूडेंट्स, फिर आप 200 ग्राम 200 ग्राम शुगर ले लीजिए और पानी में डाल दीजिए, फिर धीरे धीरे उसे स्पून से या ग्लास रॉड से अच्छी तरह से हिलाइए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे पार्टिकल्स ऑफ शुगर विल डिसअपीयर इन द वाटर। तो आप पाएंगे कि शुगर के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच इंटरमिक्स हो जाते हैं। अब आती है हमें सरप्राइजिंग फैक्ट, ये देखने को मिलता है कि 200 ग्राम शुगर इस वाटर बीकर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो गए, लेकिन वाटर लेवल नहीं बढ़ता, वाटर लेवल नहीं बढ़ता। आखिर यही प्रक्रिया हम एक और जग लेकर के करते हैं, उसमें हम 200 ग्राम शुगर के बजाय 200 ग्राम चाक पाउडर मिक्स कर देते हैं। क्या मिक्स करते हैं स्टूडेंट्स? चाक पाउडर, और उसे भी हम ग्लास रॉड से स्टिर करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि चाक पाउडर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलता नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि वाटर लेवल में 1.5 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट देखने को मिला, जबकि शुगर घोलने पर, चीनी को घोलने पर वाटर लेवल में कोई इंक्रीजमेंट हमें देखने को नहीं मिला। यह एक्टिविटी यह शो करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अर्थात वाटर पार्टिकल्स के बीच जो एम्प्टी स्पेस था, उसी स्पेस के बीच जा करके शुगर के पार्टिकल्स सेट हो गए, जिससे वाटर के लेवल में कोई इंक्रीजमेंट नहीं देखने को मिला। जबकि या दूसरे जग में जिसमें हमने चाक पाउडर घोलने की कोशिश करी थी, उस जग में वाटर लेवल में इंक्रीजमेंट देखने को मिला, जिससे ये सिद्ध होता है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस इतना कम था कि उसमें चाक पाउडर के पार्टिकल्स बड़े होने के कारण उनमें इंटरमिक्सअप नहीं हो पाए। अब अगर हम दोनों जगहों के पानी का, दोनों बीकरों के पानी का फिर से वेट करें तो हम पाते हैं कि दोनों का ही वेट अब 1200 ग्राम है। 1200 ग्राम है। यह एक्टिविटी हमें प्रूव करता है कि मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। और सेकेंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली इन मोशन एंड ड्यू टू दिस मोशन पार्टिकल्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, हम इस सेकेंड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए एक और एक्टिविटी करते हैं। स्टूडेंट्स, आप एक बीकर में 500 मिलीलीटर वाटर लीजिए और उसमें टर्न बाय टर्न एक चम्मच शुगर डिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स,
आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस था वह स्पेस अब धीरे धीरे भरने लगता है और जो डिजॉल्विंग रेट था, जो घुलने का दर था, वो स्लो हो जाता है और लगभग कई स्पून शुगर डिजॉल्व करने के बाद हम पाते हैं कि और अधिक शुगर डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम फिर से इस वाटर को गर्म करना स्टार्ट करें तो हम देखते हैं कि और अधिक शुगर को इसमें डिजॉल्व किया जा सकता है, जो इस बात को प्रूव करता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स में मोशन बढ़ जाता है और जब पार्टिकल्स मोशन ज़्यादा करने लगते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्टिकल्स के मोशन के लिए। जितने ही हम बढ़ाएंगे टेम्परेचर उतने ही पार्टिकल्स तेज मोशन करेंगे और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, स्टोर होगी। तो स्टूडेंट्स, अपने इसी प्रॉपर्टी के कारण जो पार्टिकल्स कंटिन्यू मोशन करते रहते हैं, भाई आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और पार्टिकल्स किसी प्रकार की पार्टिकुलर मोशन नहीं करते बल्कि पार्टिकल्स जिग जैग मोशन करते हैं। कोई डिफरेंट मोशन नहीं करते बल्कि ये जिगजैग मोशन करते रहते हैं। और इसी अपने प्रॉपर्टी के कारण मैटर एक दूसरे के साथ डिफरेंट टाइप्स के मैटर आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और दो अलग अलग प्रकार के मैटर के पार्टिकल के इंटरमिक्सिंग के इस प्रॉपर्टी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डिफ्यूजन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन देम कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर and the strength of force of attraction varies from one kind of matter to another. तो स्टूडेंट्स, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच होता है यही उन्हें आपस में बाइंड किए रहता है, जो उन्हें डिफरेंट शेप और प्रॉपर्टी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, यह इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है, जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये सारे मैटर के लिए सेम नहीं होता, अलग अलग मैटर के लिए अलग अलग होता है। तो स्टूडेंट्स, जितना हमने ऊपर प्रॉपर्टी की बात करी उससे हमें ये पता लगता है कि मैटर डिफरेंट फॉर्म में मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद, जानने के बाद इस परिणाम पे पहुंचते हैं कि उपरोक्त थ्री कैरेक्टरिस्टिक के कारण ही मैटर के डिफरेंट स्टेट पॉसिबल हैं। वो 5 स्टेट कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों से तो हम पहले से ही फैमिलियर हैं, क्लास 6 से ही आप जानते हैं। और 4th स्टेट है प्लाज्मा स्टेट एंड 5th स्टेट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा स्टेट हमें आसानी से नेचुरल फिनोमिनन में अपने आप हर तरफ देखने को नहीं मिलता। और 5th स्टेट जो हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, इसका
इसे खोजा गया था 19वीं सेंचुरी में दो साइंटिस्ट एशियन बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट 3 स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स प्रॉपर्टी, तो पार्टिकल के प्रॉपर्टी के बेस पर हम इन तीनों स्टेट के बारे में डिटेल में अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और फोर्थ प्लाज्मा और फिफ्थ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट के बारे में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, जो हमें अभी नहीं पढ़ाया जाएगा डिटेल में, जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं दिया गया है। इसे पढ़ने के लिए आप हमारा वीडियो 11th और 12th का भी देखते रहिएगा। हम आपको हायर क्लास में जरूर बताएंगे। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, फोर्थ और फिफ्थ स्टेट के बारे में, तो बिल्कुल देखिएगा हमारा स्पेशल वीडियो 2 यूनिक स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से हमारा वीडियो है, उसे आप जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम अगला वीडियो पार्ट 2 के नाम डालेंगे, जिसमें आप बिल्कुल देखिएगा। एक बार लास्ट में चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के द्रव्य, हमारे आसपास के द्रव्य। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बेस्ट चैप्टर है, तो बहुत ही अच्छे से हमें स्टडी करना है। इससे बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करना है। हम एक एक टॉपिक का डिटेल में स्टडी करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स बिल्कुल बनाते रहिएगा, क्योंकि ये लॉकडाउन स्पेशल क्लास चल रहा है। हम आपको लॉकडाउन स्पेशल क्लास दे रहे हैं, तो जो मैं लिख दे रहा हूँ इसीलिए लिख देता हूँ कि नोट्स आपके तैयार होते रहें, नोट्स आपके तैयार होते रहें। तो वीडियो देख करके आप नोट्स जरूर बनाइएगा। तो स्टूडेंट्स, नोट्स जरूर बनाइएगा। एक बार मैं आगे से हट जाता हूँ, 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल पॉज करके वीडियो नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो रिमेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। तब तक बी इनसाइड योर होम, बी सेफ, कीप सेफ फ्रॉम कोरोना। थैंक यू।